strength, power, and endurance. These are three different ways of expressing the working capacity of a muscle. Strength, we've already touched upon it. It is determined by size, and we measure it in kilogram per centimeter square cross-sectional area. A world-class weightlifter, the quadriceps muscle, which is a muscle of the upper thigh, will have a diameter of about 14 centimeter, and 14 centimeter is like a little larger than your hand. So that quadriceps muscle will have a diameter of 14 centimeter, making the cross-sectional diameter about 150 square centimeter. And when this muscle will contract, it can generate a power up to 525 kilogram force, which will be applied on the patellar tendon, which joins the knee joint. And that is why there have also been cases of avulsion of the tendon from the knee because of the strength of the force which is generated by large muscles. Holding strength is even stronger. So lifting strength, and then when you want to keep something lifted, that is even more for a muscle. So the force of 525 kilogram, which will be applied to lift a weight, that force in order to maintain that lifting will become 735 kilograms. So this is about the strength, action strength and the holding strength. Then we have a concept of power of muscle. Power is actually related to work, when you get something done. So that is defined in different units, kilogram, meters per minute. So which means that you imagine that you are pulling, if you are pulling a 1 kilogram of weight across 1 meter of distance in 1 minute, or you are lifting 1 kilogram of weight across 1 meter in 1 minute, that means you have exerted a power of 1 kilogram meter per minute. So this power is measured in how many kilograms can be lifted or pulled along 1 meter in 1 minute. That will be defined as the power. That the power will differ at different times. So when you start doing an activity, like you keep lifting something, even if you're lifting your child, how you get tired afterwards. In the first 8 to 10 seconds, you can exert a power of 7,000 kilogram meter per minute. But this strength soon declines, and in the next 1 minute, your power reduces to 4,000. And in the next 30 minutes, after half an hour of working, the power will reduce to 1,700, or about 4 times less than the first few seconds. The power will decrease. Now, this power is different from efficiency of a muscle, because this just shows how much strength can a muscle exert to create a movement, to create an activity. Basically the contraction, the shortening. This does not directly translate into efficiency of athletic performance. Efficiency का मतलब ये है कि अगर आप जोर लगाते हो, तो उस जोर लगाने में आप काम कितना कर सकते हो. Efficiency, जब भी एनर्जी, उतनी ही एनर्जी ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं कि वो ज्यादा एफिशिएंट है. और उसमें सिर्फ पावर नहीं आता, उसके अंदर फिर और भी चीजें आती हैं. The way your muscle movement will be coordinated and your bone will be coordinated. ठीक है? तो पॉइंट आते हैं वो है एंड्योरेंस, कि अब हमने मसल की कैपेसिटी को असेस करने के लिए एक तीसरी चीज हम देखते हैं एंड्योरेंस. और एंड्योरेंस का बेसिकली था कितनी देर आप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कितनी देर सस्टेन कर सकते हो कॉन्ट्रैक्शन. और इसका ताल्लुक बेसिकली है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कि न्यूट्रिटिव सपोर्ट क्या है मसल्स की. मसल को जब तक रोटी मिलती रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा. तो जो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं जिनमें और किस्म का न्यूट्रिशन सिस्टम होता है, और कुछ सिस्टम जो अभी आपने भी जिक्र किया, और कुछ ऐसे मसल फाइबर्स होते हैं जिनमें डिफरेंट किस्म का न्यूट्रिटिव सिस्टम है. ये डिटरमिन करते हैं
कि मसल या फास्ट ट्विच मसल्स होंगे, वो उनके अंदर ऐसा न्यूट्रिटिव सिस्टम होगा जो सडनली, जो रैपिडली एटीपी जनरेट कर सकते हैं और वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, रैपिड एंड फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन जल्दी यूटिलाइज हो जाएगा एटीपी। फिर आपके कुछ ऐसे, और ये होते हैं आपके फास्ट मसल फाइबर्स। जो स्लो मसल फाइबर्स होते हैं, ये वो होते हैं जो स्लोली ट्विच करते हैं, लेकिन इनका एटीपी स्लोली यूटिलाइज होता है, तो वो ज्यादा देर की एक्टिविटी के लिए रिटेन रह जाता है। इनको कहते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स। अब ये पिक्चर आपको बताती है कि एंड पे तो करेंसी जो है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन की, जैसे कि किसी भी एक्टिविटी की है, वो है तो मेटाबॉलिक सिस्टम्स जो आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 3 किस्म के मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं जो आपके मसल में इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला है फॉस्फोक्रिएटिनिन सिस्टम, ये हम इस डायग्राम से पढ़ते हैं के अंदर वो कॉक्ड एनर्जी थी, और एक्टिन की साइड से जब उसने बाइंड होना था तब उसने अनकॉक होना था, फॉरवर्ड स्ट्रोक होना था और मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी थी। तो बेसिकली तो हमारे जो एंड प्रोडक्ट है इस पूरी चीज में, मशीन का जो पेट्रोल है, वो एटीपी है। लेकिन इस एटीपी को जनरेट करने के लिए 3 किस्म के सिस्टम्स हैं। फॉस्फोक्रिएटिनिन सिस्टम जो क्रिएटिनिन और फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है, ग्लाइकोजन सिस्टम जब वो एक्टिवेट होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं। और इनमें से जो सबसे इमीडिएटली काम करता है वो है फॉस्फोक्रिएटिनिन सिस्टम। क्रिएटिनिन का हमारे से राब्ता हमारे से पाला पड़ा था जब हमने किडनी पढ़ी थी। एक बॉडी में क्रिएटिनिन मौजूद होती है, जब वो ब्रेक डाउन होती है, और उसी से हम फिर हमने कहा था कि हम जीएफआर, उसकी क्लियरेंस मेजर करके जीएफआर मेजर कर सकते हैं। रिमेंबर वी डिड दैट। सो दिस इज दैट क्रिएटिनिन वी आर टॉकिंग अबाउट। क्रिएटिनिन जो बेसिकली पड़ी होती है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, उसका ये हाई एनर्जी बॉन्ड, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड एटीपी के हाई एनर्जी बॉन्ड से भी ज्यादा हाई एनर्जी है। क्यों? क्योंकि एटीपी का जब आप एक फॉस्फेट अलैदा करते हैं तो 7300 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब ये क्रिएटिनिन का हाई फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो फिर 10,300 कैलोरीज पर मोल रिलीज होंगी। इट्स वेरी हाई एनर्जी। एंड इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये फौरन ब्रेक डाउन करता है, लेकिन ये फौरन यूटिलाइज भी हो जाता है। तो जो पहले 8 से 10 सेकंड में आपको कोई एक्टिविटी करनी होती है, उसमें फॉस्फोक्रिएटिनिन होता है जो यूटिलाइज होता है। याद रखो, आपके जो स्टोर्ड एटीपी है ना आपकी बॉडी में, दैट इज, जितने मर्जी आप एथलेटिकली ट्रेंड हो, चाहे आप मोहम्मद अली हो या आजकल कौन सा एथलीट है, आई डोंट नो अबाउट एथलीट्स, हाईली ट्रेंड एथलीट हो, जो आपके अंदर स्टोर्ड एटीपी होगी वो सिर्फ 3 से 4 सेकंड की एक्टिविटी के लिए काफी होगी। उसके बाद एडीपी बन जाएगी। उसके बाद आपको ये मेटाबॉलिक सिस्टम्स चाहिए होंगे जो फॉस्फेट, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स प्रोवाइड करें और एटीपी को रिप्लेनिश करें बेसिकली, और फिर एटीपी इस्तेमाल। स्टोर्ड एटीपी 3 से 4 सेकंड में यूज हो जाएगी। उसके बाद आपको चाहिए ये मेटाबॉलिक सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल फॉस्फोक्रिएटिनिन जो 8 से 10 सेकंड पे जो आपने काम करना है, उसमें फॉस्फोक्रिएटिनिन का जब हाई एनर्जी बॉन्ड टूटेगा, वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगी, और वो एटीपी फिर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होगा। दैट इज बेसिकली हाउ इट हैपेंस। एंड तो इसलिए 100 मीटर डैश जो होता है, जो आप अपने स्पोर्ट्स डे पे एक्टिविटी रखते हो, जो थोड़ा सा टीचर्स ने भागना होता है, उसके अंदर आपकी टीचर्स जो हैं जब स्टार्ट लेती हैं तो 3 सेकंड जो पहले होते हैं उसमें एटीपी फारिग हो जाते हैं, और फिर फॉस्फोक्रिएटिनिन है जो इस्तेमाल होती है फॉर रनिंग, बट दैट इज ऑल्सो गॉन आफ्टर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स, 8 to 10 seconds. Then your glycogen lactic acid system comes into play. अब इसलिए हम कहते हैं कि आपको स्टोर्ड ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट थी एंड्योरेंस के लिए। एंड्योरेंस एक्सरसाइज तो डेफिनेटली 10 सेकंड से ज्यादा ही होगी। जितनी देर ग्लाइकोजन स्टोर्ड होगी उतनी ज्यादा आप एंड्योरेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब एंड्योरेंस एक्सरसाइज में होता क्या है कि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगी, ग्लूकोज बनेगा और ये ग्लाइकोलिसिस होगा, और ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता,
2 पायरुवेट बनते हैं और इस दौरान 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जब 2 पायरुवेट बनते हैं साइटोप्लाज्म में। इसमें थ्रू आउट दिस प्रोसेस चूंकि आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा ऑक्सीजन, तो इसको हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये जो 2 पायरुवेट बने हैं, they can follow 2 paths. They can either enter the mitochondria और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का फिर प्रोसेस चल पड़ेगा और उसके बाद और ढेर सारे एटीपीज प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, जो अक्सर ये होता है कि हमारा रेट ऑफ एक्सरसाइज हमारा ऑक्सीजन स्टोर्स के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है, तो तब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट। ये लैक्टेट मसल्स के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जमा होना शुरू हो जाता है और आपको खलियां पड़ जाती हैं। ये लैक्टिक एसिड इरिटेट करता है नर्व एंडिंग्स को, इसलिए पेन भी होती है। और आप में से अक्सर जो फिर अपने आप को मालिश करवाता होगा या दबाता होगा आफ्टर एक्सरसाइज, तो वहां पे यू कैन एक्चुअली फील दोज लैक्टिक एसिड पॉकेट्स और उनको डिसिपेट करना पड़ता है टू गेट, लेकिन उस दौरान बहुत दर्द होती है बिकॉज दे इरिटेट द पेन नर्व एंडिंग्स। सो दिस लैक्टिक एसिड नीड्स टू बी गॉटन रिड ऑफ। इसमें भी रैपिड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रही है, फॉस्फोक्रिएटिनिन से कम रैपिड, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी से ज्यादा रैपिड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2.5 गुना ज्यादा तेजी से, लेकिन एज कंपेयर टू फॉस्फोजन सिस्टम ये उससे हाफ द स्पीड है उसकी। अब हम आते हैं तीसरा सिस्टम जो एरोबिक सिस्टम है, कि अब आपकी जो ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स आप फूड स्टफ से लिया हुआ है आपने, ये मुख्तलिफ मेटाबॉलिक साइकिल्स में जाती हैं और एटीपी प्रोड्यूस करती हैं। इसके लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत होती है, एंड देन एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। बट दिस विल बी अनलिमिटेड as long if you have oxygen and as long as you have the substrate, ATP will continue to be produced. So the phosphagen system produces 4 moles of ATP per minute, glycogen lactic acid system 2.5 moles of ATP, and aerobic system 1 mole of ATP per minute. So the production is slowest with aerobic system and fastest with phosphagen system. But let's look at the endurance values. Phosphagen system will produce ATP that will last 8 to 10 seconds and then the system will exhaust. Glycogen lactic acid system will provide 1.3 to 1.6 minutes worth of ATP production, and then this will exhaust as well as lactic acid accumulates. Aerobic system can provide unlimited ATP production time-wise as long as the nutrients last. हमें देखना है कि ये एक दफ़ा जब सब कुछ यूटिलाइज हो जाता है तो ये रिप्लेनिश कैसे होता है, क्योंकि हमने एक ही दफ़ा एक्सरसाइज करके फौत तो नहीं हो जाना ना, हमने जिंदा रहना है, हमने और भी एक्सरसाइजेस करनी है। तो फिजियोलॉजिकली क्या सिस्टम है जिससे ये सब कुछ रिप्लेनिश भी होता है, वो हमने देखना है कि मसल अब रिकवर कैसे करता है। खास तौर पे लैक्टिक एसिड हायर लेवल सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है ना, जैसे एरोबिक आपका ग्लाइकोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये आपकी जो एटीपी प्रोड्यूस करेगी ये रिप्लेनिश करेगी ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम को। जो ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम एटीपी प्रोड्यूस करेगा वो फॉस्फेजन सिस्टम को रिप्लेनिश कर देगा और इस तरह आपके सारे स्टोर्स रिप्लेनिश हो जाएंगे। लेकिन हम लैक्टिक एसिड की खास तौर पे बात करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमारे प्रॉब्लमेटिक होता है। जब लैक्टिक एसिड, एक तो जब ग्लाइकोजन स्टोर्स तो डिप्लीट होते ही हैं तो आप फटीग हो जाओगे, लेकिन लैक्टिक एसिड मैंने आपको बताया था कि पेन कॉज करता है और फटीग कॉज करता है। इज आइदर कन्वर्टेड बैक टू पायरुवेट एंड देन इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी टिश्यूज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के पाथवे में चला जाता है। दूसरा ये कि जब हम मालिश कर करके लैक्टिक एसिड को वापस ब्लड में डाल देते हैं तो वो जब लिवर तक पहुंचता है, लिवर इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट इज हाउ वी गेट रिड ऑफ लैक्टिक एसिड। कि हम लैक्टिक एसिड का तो डिस्कस हमने कर लिया। अब इवन एरोबिक सिस्टम्स को हमने एक्सरसाइज के बाद रिकवर करना है। एक तो ऑक्सीजन डेट है, क्योंकि एरोबिक सिस्टम्स तब तक काम करेंगे जब तक ऑक्सीजन मिल रही है। अच्छा, और ये वो ऑक्सीजन नहीं है जो हम सांस ले रहे हैं,
वो ऑक्सीजन है जो स्टोर्ड है। सांस लेने से स्टोर्ड ऑक्सीजन बहुत स्लोली रिप्लीट होता है, लेकिन जो ये आपकी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टोर्ड ऑक्सीजन है जो आपके हीमोग्लोबिन में है, जो आपके बॉडी फ्लूइड्स में डिजॉल्व है, जो आपके मायोग्लोबिन के साथ अटैच्ड है। और जब हम ब्रीद नहीं कर रहे होते, जो हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम एयर, लंग वॉल्यूम में एयर है, उसके अंदर की ऑक्सीजन, ये सब कॉन्स्टेंटली यूज हो रही होती हैं एज अ सिंगल स्ट्रीम। और जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली इन स्टोर्स को रिप्लेनिश कर रहा होता है। अगर इन स्टोर्स की रिप्लेनिशमेंट उस स्पीड से ना हो सके जिस स्पीड से ये यूज हो रहे हैं, तब हमारे एरोबिक सिस्टम्स भी फेल होना शुरू हो जाए। का मतलब कि जब हमारी ऑक्सीजन हमारे स्टोर्स में से यूज होती है, तो एक किस्म का हम पे कर्ज चढ़ता जाता है कि इनको हमने रिप्लेनिश करना है। This is oxygen debt, which we have to repay. And by repay means we have to replenish these stores. Now, this diagram shows us how oxygen debt is made and repaid. Now, we see that if at baseline, the oxygen uptake is say 200 to 250 ml per minute, and as we exercise, this can increase up to 4.5 liters per minute. And as long as we are exercising, the oxygen consumption will be raised. Suppose we exercise for 4 minutes. Now at this point, one would expect the oxygen consumption to decrease to resting levels as soon as we finish exercise. But this does not happen. There is not a straight line going downwards indicating a immediate reduction of oxygen intake to resting levels. Rather, we see there is a slow decrease in oxygen consumption. So after the 4 minutes of exercise, after 5 minutes, it is still 2.5 liters per minute. At about 6, it is still 1.5 liters per minute. At about 7, it is still 1 liter per minute, whereas the baseline is 200. So we see that in about the first 4 to 5 seconds, there is a substantial reduction in oxygen consumption, but it is still way above the baseline. And even afterwards, for the next 44 minutes or so, there is a oxygen consumption remains higher than the baseline. And this is the time when this extra oxygen will be used to pay the oxygen debt. This first 4 seconds is alactic oxygen debt. It's about 3.5 liters. And these next 40 minutes are lactic acid oxygen debt, which is about 8 liters. लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एक्सरसाइज 4 मिनट्स पे खत्म हो गई है, लेकिन 5 मिनट्स पे भी 2.5 लीटर पर मिनट इस्तेमाल हो रही है। आपका बेस लाइन है 0.2 लीटर्स पर मिनट। फिर 6 मिनट पे भी 1.4 लीटर पर मिनट इस्तेमाल हो रही है, हालांकि आपका बेस लाइन है 0.2 लीटर पर मिनट। आज भी 0.8, तकरीबन 12 मिनट तक ये भी स्लाइटली ऊपर रहती है। आपकी बेस लाइन जो है रेस्ट वाली, वो 40 मिनट्स प्लस में जाके अचीव होती है। उससे पहले आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन का रेट हाई रहता है, यानी योर बॉडी स्टोरिंग ऑक्सीजन समवेयर, कंज्यूमिंग इट। कंज्यूमिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करता है। कंज्यूमिंग का मतलब वो अपनी जेब में भी रख रही है, बॉडी अपनी जेब में ऑक्सीजन रख रही है, अपने स्टोर्स रिप्लेनिश कर रही है। ठीक है, सो ये जो अब इसके अंदर जो पहला पार्ट है ना, ये स्टोर्स रिप्लेनिश करने का ये वाला पार्ट है कि जिसमें आपके स्टोर्स रिप्लेनिश होते हैं ऑक्सीजन के। ये 8 मिनट्स में हो जाते हैं। 8 मिनट से जो 44 मिनट्स तक ऑक्सीजन आपकी यूज हो रही है, ये लैक्टिक एसिड को जो वापस हमने पायरुवेट में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, ये उसके लिए ऑक्सीजन यूज हो रही है। ठीक है, तो दिस फर्स्ट पार्ट इज alactic oxygen debt. It's the kind of oxygen debt where lactic acid is not involved, और इसमें आप यूज कर रहे हो, अपने रिप्लेनिश कर रहे हो स्टोर्स को। जो 8 से 44 मिनट्स एंड ऑनवर्ड्स आपकी थोड़ी सी बेस टाइम कंजम्पशन बढ़ी हुई है ऑक्सीजन की, ये है फॉर लैक्टिक एसिड कन्वर्जन बैक टू पायरुवेट एंड बैक टू ग्लूकोज। बता दूं कि ये हमारी ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे है। हमारी एट एनी टाइम 2 लीटर ऑक्सीजन स्टोर्ड है बॉडी में। ½ लीटर वो जो रेजिडुअल वॉल्यूम में है,
250 ml बॉडी फ्लूइड्स में डिजॉल्व है, 1 लीटर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड है, 300 ml मायोग्लोबिन में। ये यूज हो जाए, इसमें से यूज करती है, इसमें से यूज डिफ्यूज आउट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करता है। उसका भी यही प्रिंसिपल है, यूर राइट। तो खैर, अब मसल जो ग्लाइकोजन रिप्लेस करने के लिए आप देखो, हाई कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हो तो विद इन 2 days 48 आवर्स में आपकी ग्लाइकोजन रिप्लेनिश हो जाती है। अगर आप कुछ नहीं खाते तो ये आपके 24 इसमें भी यानी बहुत कम, योर मसल ग्लाइकोजन अगर आपकी नॉर्मली 25 ग्राम पर किलोग्राम है तो ये बस 4, अगर कुछ नहीं खाते तो 4 तक रहती है। अगर आप फैट एंड प्रोटीन भी खाते हो तब भी उतनी ही रहती है। देखो, फैट और प्रोटीन खाने में और नो फूड खाने में ज्यादा फर्क नहीं है। तो वो जो कीटो डाइट का जिक्र कर रही है मेमूना, वो उसकी ये बेस लाइन है कि आपके भी ग्लाइकोजन स्टोर्स उतने ही रिप्लेनिश होंगे। इट विल बी एज इफ यू हैवंट ईटन एनीथिंग एज फार एज ग्लाइकोजन इज कंसर्न। बट इफ यू ईट कार्बोहाइड्रेट्स तो फिर कहाँ आपके ये 4 तक रह रहे थे ग्राम्स पर किलोग्राम्स ऑफ मसल, विद हाई कार्बोहाइड्रेट्स ये तकरीबन 20-24 किलोग्राम तक पहुंच जाते हैं। हमारे टेक होम मैसेजेस इसके रेफरेंस में ये हुए कि अगर तो आप एथलेटिक इवेंट में हो, उससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं एथलीट्स, खाएंगे ब्रेड खाएंगे, वीट खाएंगे, चावल खाएंगे, व्हाटएवर इंक्रीजेस द ग्लाइकोजन स्टोर्स। एंड दे आल्सो मेक श्योर कि अपनी एक्सरसाइज से पहले वो ट्रेनिंग बंद कर देते हैं 48 आवर्स पहले, ताकि उनके ग्लाइकोजन स्टोर्स बने। उन 48 आवर्स में वो अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स बनाते हैं। उस दौरान वो कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करते बिफोर देयर एक्चुअल इवेंट।